कल हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर सर्वर पार्ट पे रेडी हो गया था. We did our configurations on the DC side. We did the required configuration on the CA side, and we also completed installing and configuring the NDES role. So we are now only left with configuring the app proxy and the certificate connector. Every time we restart a server, it's a good practice to check your connectivity to all the other services. First, I will check my ping to DC. So DC is reachable. I won't check connectivity of the CA using ping. You can use certutil -config -space-ping, which will give you CS at anyone, and you will see server could not be reached. The RPC server is unavailable. CA is not CA01 is not reachable. I will now check for CA02 is completed successfully, so interface is alive. Why my CA01 is not available? चल तो रहा है. क्या व्यू ठीक है, वो क्या है वो बाद में देखेंगे. कनेक्शंस है, एंड इसमें कल मैं वो प्रॉक्सी डाउनलोड करके रखा था. So we continue setup of the proxy. Installing the app proxy requires an account that should have cloud application administrator role or your global administrator role. Installing and configuring app proxy is not also under scope of Intune. हम लोग ही करते हैं, but normally in production we get someone from the Azure AD team जो हमको वो यूजर प्रोवाइड करेगा जिसके पास वो क्लाउड एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेटर का रोल है, बिकॉज वी डू नॉट ग्रैब ग्लोबल एडमिन ऑलवेज. बहुत रेयर केसेस में तुमको ग्लोबल एडमिन का मतलब तुमको तो नहीं मिलेगा, वो यूजर मिलता है जिसके पास ग्लोबल एडमिन
app proxy connector is now installed. I will need to go to Entra or Azure AD to complete the configuration of the app proxy. Which involves registering an application as an enterprise application. I have my proxy up now here. So now I have to configure an app. Which I will give as a lab. Yes. I need my internal URL. Internal URL is what? Internal URL is the URL where my certificate services is running in IIS. So IIS manager, and you see this enter service is running. This here I have not binded port 403 yet, so still running in default website is still running in 80 HTTP, which I will change later. This IIS is now resolving to this particular URL. So this is my internal URL, which will only change from HTTP to HTTPS. What I will do is this portion is not required. I will just copy this, paste it in here as this, external URL. It will give me external URL which I can configure with any of the domain. Let's keep it simple. It will be labindex.intune.in. I can copy this external URL. Pre-authentication is passed through. Do not set it to Entra ID because the requests are not coming for any particular user. The requests are going through the certificate connector and the app proxy, so it needs to be a pass through. Connector group is basically where you have set your connector. Mine is in Asia, so it's there. If you have a different group, you can add it to the SSL certificate. We do not require an SSL certificate for this. You can just create or just go and check advanced. Backend application timeout we will set to long. Okay, translate backend SS. Create, which will create my enterprise application. The application is created and updated. If I try
reach out my external URL, obviously it will give that the site is not reaching because port 443 is not working still now, but we will fix that later. We only need this external URL for now, which I will use to request for the SSL certificate. Dot lm dot ask request new certificate. I have the NDES certificate SSL certificate template which we created yesterday here. It says that click here to configure setting because it requires more settings. Because subject name in the template we selected the supply in request, we need to configure that. Okay, subject name is check. Common name of full DNS. Subject is common name, which is the FQDN of the server, and the FQDN of the server is ndes01 dot intune with joy.in. Add and alternate subject name is the DNS. So it will have the uh, internal URL that it will respond to. This and the external URL which it will reply to this. Okay. Now Microsoft mentions that if we are using app proxy, we do not need to mention the external URL because it's app proxy which will resolve the external kernel. But sometimes you may
end up with SSL error. It's best that you add both the internal and your external URL as the alternate name as a DNS parameter certificate. Uh, General is mention. It's coming to apply. Okay. Now click on enroll. Data succeeded. So you have your this one is the SSL certificate that I requested. So subject alternate name have the DNSS and common name is obviously it is given to this subject and issuer is the CA02. Now that we have this certificate, I can do the port binding. I can click on default website. I can go to bindings. I can click add. And click HTTPS. Certificate is this. Okay, so my port 443 binding is now up. I can remove 80 if I want. Mostly the 81 is removed of that, so don't need that anymore. But if I put this and instead do an HTTPS, it should still resolve. Now continue. So IIS, I'm reaching out to the IIS page. Now if I add in this and do the call, I'm reaching to the same. Now here you will see not secure, which will stay internally because the SSL certificate is generated by an internal CA, which is not published to the internet. So the internet does not know whether that SSL certificate is valid or not, but that is enough for us. Or if you want this to be also like come as a secured, then you can buy an SSL certificate from DigiCert or any other SSL certificate authority which publishes certificate in the internet. But we can reach internally. Now we have to check just if we can also reach out externally. So cert srv get.dll and it still says cannot do here.
क्यों नहीं जा रहा है? हम्म, नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है बोलो, कोई ट्रबल शूट करो। इंटरनल तो रिजॉल्व हो रहा है, एक्सटर्नल क्यों नहीं रिजॉल्व हो रहा? ठीक है, वो आएंगे। उससे पहले कुछ और करना जरूरी है। इस पे डिफॉल्ट वेबसाइट पे व्यू एप्लीकेशन को थोड़ा एक्सपेंड करना है। पहले वी विल गो टू द एडमिन, गो टू एडमिन, इधर पे हम लोग ऑथेंटिकेशन पे आएंगे। यहाँ पे विंडोज ऑथेंटिकेशन इनेबल्ड है। विंडोज ऑथेंटिकेशन को वी नीड दैट टू बी। इसका पहले एडवांस सेटिंग्स में जाएंगे। इनेबल कर्नल मोड ऑथेंटिकेशन अगर है तो उसको क्लियर करेंगे, उसको ओके करेंगे एंड देन इसको डिसेबल करेंगे। वी डोंट नीड विंडोज ऑथेंटिकेशन, ठीक है। और डिसेबल करके ठीक है। और वी विल गो बैक टू साइट व्यू एप्लीकेशन, इसके पे अभी आना है एंड इसमें वी नीड टू गो टू रिक्वेस्ट फिल्टरिंग। के बाबा पीछे क्यों जा रहा है? रिक्वेस्ट फिल्टरिंग पे एडिट फीचर सेटिंग्स, इधर पे मैक्सिमम अलाउड जो बाइट्स है वो हमको इंक्रीज करना है, तो 65536, वी कैन पुट इट एट 65534 534। डबल स्किपिंग अलाउ नहीं करेंगे एंड दैट इज पे ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाने के बाद जस्ट एक बार डबल चेक करके कंफर्म कर लेना हुआ है कि नहीं। वापस हमको जाना है होम पे, इसका भी विंडोज ऑथेंटिकेशन डिसेबल करना है। विंडोज ऑथेंटिकेशन
स्केप मेरा स्टार्टेड है, तो बाइंडिंग चेंज करना है। पोस्ट नेम मेरा है index01. Goes to a सो हम IIS सर्विस को स्टार्ट स्टॉप कर रहे हैं। स्टार्ट स्टॉप हो गया तो वी विल अगेन चेक IIS सर्विस फॉर द सर्विस स्टेटस। एप्लीकेशन टूल में स्केप स्टार्टेड है। इंटरनेट पे एक बार चेक कर लो तुमको आ रहा है कि नहीं। आ रहा है और ये अभी तक नहीं आ रहा है। इसके बाद में देखेंगे। इसके बाद वो जो हम लोग वैल्यू सेट किए थे 65534, वो सिर्फ हमने अभी तक IIS में ही सेट किया है। तो वी ऑल्सो नीड टू सेट दैट इन द रजिस्ट्री। रजिस्ट्री में वी नीड टू गो टू लोकल मशीन, current control set, HK local machine system control set, इसके अंदर सर्विसेज, इसके अंदर HTTP के अंदर पैरामीटर्स एंड पैरामीटर्स। यहाँ पे हमको 2 रजिस्ट्री क्रिएट करना है। वी विल क्रिएट न्यू, तो एक कीवर्ड वैल्यू हमको चाहिए इधर पे। वैल्यू का नाम है मैक्स फील्ड स्ट्रेंथ। का वैल्यू है 65534 and we will need to create another one जिसका नाम है मैक्स रिक्वेस्ट बाइट्स एंड इसका भी वैल्यू है 65534। अभी हम लोग का ये वाला डन हुआ। अगर प्रॉक्सी पे काम कर रहे हो तो यू विल हैव टू चेक प्रॉक्सी एज वेल। तो प्रॉक्सी देखने का HTTP शो प्रॉक्सी। जब पे मेरे डिवाइस पे कोई प्रॉक्सी सर्वर काम नहीं कर रहा है तो डायरेक्ट एक्सेस दिखा रहा है। अगर तुमको प्रॉक्सी सर्वर है, तुमको पता है कि देन तुमको इधर पे प्रॉक्सी भी सेट करना होता है।
using this command. Keep in mind, ये जो कमांड प्रॉम्प्ट खोल के ये कमांड रन करके हम जो प्रॉक्सी सेट करेंगे, दिस प्रॉक्सी इज गेटिंग सेट फॉर द यूजर लेवल, दिस प्रॉक्सी इज नॉट गेटिंग सेट फॉर द सिस्टम लेवल। तो हमको सिस्टम लेवल पे भी प्रॉक्सी सेट करना होता है। So for that you will have to download psexec.exe and then run psexec.exe to open command prompt in system context। का कमांड ये है, एंड तब जो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगा उसमें तुम हु एम आई करके देख सकते हो। इट विल शो यू एंटी सिस्टम। अगर मैं इधर पे हु एम आई करता हूँ ये कमांड प्रॉम्प्ट पे, इट विल शो मी द यूजर। उधर पे तुमको ये नहीं दिखेगा पीएस एग्जैक्ट पे, उधर पे तुमको एंटी सिस्टम दिखेगा। एंड देन यू विल अगेन need the same netsh command to set the proxy at the system level। ये हो गया, प्रॉक्सी मेरा ठीक है, प्रॉक्सी ठीक नहीं है मेरा, ये ठीक है, क्या ठीक है मेरा, ये ठीक है। अच्छा प्रॉक्सी मेरा क्यों नहीं चल रहा है, रेडी, एप्लीकेशन अपडेट अभी भी कुछ नहीं चलता है, एक बार सर्वर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, उड़ जाएगा। भाई टाइपो नहीं है, यही मेरा एक्सटर्नल यूआरएल दिया है। अच्छा ये एक्सटर्नल यूआरएल चेंज करना होगा, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, to access your application using custom domains you must configure the following CNAME entry in your DNS provider। मतलब ये इंट्यून विद जॉय मेरा जिस पे जो मेरा डीएनएस प्रोवाइडर है मतलब GoDaddy,
तो GoDaddy में जाके मुझे इसका DNS एडिट करके उसमें CNAME एंट्री डालना होगा इसको, फिर वो रेप्लिकेट करेगा एंड देन मैं उसको यूज करता हूँ। इसलिए मुझे फिर इंडस सर्विस में SSL सर्टिफिकेट में भी चेंजेस करना होगा, क्योंकि एक्सटर्नल URL मेरा चेंज हो रहा है। इसके लिए अपना जो है डोमेन भी HTTPS में होना चाहिए क्या? अगर डोमेन HTTP पे हुआ जैसे? नहीं, डोमेन HTTP या HTTPS पे नहीं होता है। डोमेन तुम जब खरीदते हो तुम सिर्फ डोमेन खरीदते हो। हाँ मतलब डोमेन का मतलब उस पे अगर हमें प्रोटेक्शन लगानी पड़ती है ना कुछ, जैसे GoDaddy पे ही रहता है फुल डोमेन हाँ, प्रोटेक्शन। तुम SSL ले सकते हो। हाँ करेक्ट। तो इसमें अगर हम SSL नहीं लेंगे, हमारा डोमेन सिर्फ HTTP पे काम करेगा, तो हम्म। ये वाला चीज चलता है उस पे, या हमें SSL खरीदना ही पड़ेगा अपने डोमेन के लिए? ना ना ना, चलता है। ओके। मैं नहीं खरीदना होगा। ओके। ये सर्टिफिकेट डिलीट करने से पहले मुझे वो बाइंडिंग हटाना होगा। सर्टिफिकेट बंद कर दिया क्या? नहीं, ये डिलीट रिक्वेस्ट in. This is the CDN of my server. DNS internal URL. ऑब्वियसली नहीं आएगा, बट इसको डालेंगे HTTPS करके। रिमूव ना, इसको नहीं, पूरा नहीं चाहिए। कुछ भी आए and external URL here control finish, go to bindings again and yes,
इंटरनल तो हुआ, एक्सटर्नल ठीक है, एटलीस्ट घूम तो रहा है। सो सर्ट एसआरवी बैड गेटवे। ओके, इसको स्टार्ट कर सकते हैं प्रॉक्सी सर्विस जो है यहाँ पे। प्रॉक्सी सर्विस को रिस्टार्ट करने की जरूरत है तो नहीं, बट चेक, एक मिनट। ठीक है, आया। हाँ, यस सर्विस DLL, तो मेरा एक्सटर्नल यूआरएल भी रिजॉल्व हो रहा है। प्रॉब्लम क्या था? वैलिडेट बैकएंड एसएसएल सर्टिफिकेट, वो वैलिडेट नहीं कर पाएगा बिकॉज ये मेरे इंटरनल एसएसएल सर्टिफिकेट है। तो मेरा एक्सटर्नल यूआरएल और मेरा इंटरनल यूआरएल दोनों रिजॉल्व हो रहा है अभी। क्या हो ही रहा है? मेरा ऐप प्रॉक्सी की तरफ से अभी सेट है। अभी मुझे क्या करना है इसमें? इंट्यून सर्टिफिकेट कनेक्टर डालना है, वही मेरा लास्ट काम बाकी है। कनेक्टर तो इधर से मिलता है। सर्टिफिकेट कनेक्टर ऐड। पहले अलग अलग कनेक्टर्स आता था, हर एक का डिफरेंट, बट अभी तुम्हारा एक ही कनेक्टर सेटअप फाइल है। एंड वही वही तुम जो कॉन्फ़िगर करोगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा वो क्या फंक्शनलिटी देगा। नहीं तो पहले स्केप का एक था, पीकेसीएस का एक था, पीएफएक्स का और एक था। मेरा कनेक्टर है तो मैं इसको खोल सकता हूँ। एग्री, इंस्टॉल। अच्छा, अभी तुमको लगेगा ये कनेक्टर पे साइन इन करने के लिए तुमको लगेगा एक ऑन प्रेमाइसेस सिंक
अकाउंट जिस पे इंटर्न एडमिनिस्ट्रेटर का रोल है, ठीक है, वो मेरा यूजर है जो एडमिन ऑन प्रेमिसेस से है, इस पे लाइसेंस है, ठीक, चलो कॉन्फ़िगर नाउ। तुम क्या कॉन्फ़िगर करना चाहते हो? PKCS तो हम नहीं कर रहे हैं, स्केप कर रहे हैं। दिस स्केप एंड PKCS ये नॉर्मल ऑथेंटिकेशन पर्पस में यूज होता है। ये PKCS इंपोर्टेड सर्टिफिकेट, ये जो है दिस इज योर एसमेल सर्टिफिकेट, इसको पहले PFX बोला जाता है। ये काम किस पे करेगा? स्पेसिफाई या सर्विस अकाउंट फॉर दिस कनेक्टर, सिलेक्ट सर्विस अकाउंट, नहीं मेरा डोमेन अकाउंट नहीं, सर्विस अकाउंट है मेरे पास, senders.svc सर्विस अकाउंट का डोमेन भी देना पड़ेगा, सॉरी, senders.svc, पासवर्ड है, प्रॉक्सी मेरे पास नहीं है तो मैं कुछ नहीं दूंगा। हाँ, सो इट इज मिसिंग HTTP एक्टिवेशन। ये सारे काम के लिए तुमको क्या करना होगा? थोड़ा पावरशेल को एडमिन पे रन करो, सिर्फ HTTP एक्टिवेशन वो मिसिंग बोल रहा है तो वो पावरशेल से इंस्टॉल कर लो। हो गया, रीरन चेक, कैसे भाई साहब कैसे? तो भाई अभी तो इंटरनेट है तुम्हारे पास?
Destination server has a pending restart. अभी हमको ढूंढना पड़ेगा वो कॉन्फ़िगरेशन। एसएमएस रन करना, रन एज एडमिन करना। तो इस साइन इन में मुझे चाहिए ऑन प्रेमिसेस सिंक्ड अकाउंट जिसपे इंट्यून एडमिन का रोल हो। तो वो मेरा अकाउंट क्या था भाई? What the? साइन इन सक्सेसफुल आया तो कॉन्फ़िगर। ये भी कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो नाउ मेरा स्केप सर्टिफिकेट कंप्लीट हुआ। स्केप सर्टिफिकेट नहीं, इंडेक्स कंप्लीट हुआ। और अगर मैं इधर पे
सर्टिफिकेट स्टोर में देखूंगा तो आई विल नाउ हैव अनदर सर्टिफिकेट जो इंट्यून के तरफ से आया होगा। इंट्यून के तरफ से आया है माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून। एंड अभी अगर मैं अपना एक्सटर्नल यूआरएल पे जाऊँ तो वो क्या रिजॉल्व कर रहा है चेक कर लेते हैं। इसमें अभी 500 इंटरनल सर्वर एरर आया। अगर कॉन्फ़िगरेशन अच्छा होता तो 403 आता। तो मतलब मेरा किधर पे कोई गलती है। तो अगर शूटिंग फिर से 500 एरर। इसका ट्रबल शूटिंग मैं नहीं करूंगा तो मुझे तो पता ही है कि HTTP एरर ट्रबल शूटिंग सी। ये ब्लॉग पोस्ट पढ़ लेना। बहुत साल पहले लिखा था, मतलब 2 साल 1 साल ही पहले लिखा था। इसमें जितना भी एरर्स आता है इंडेक्स में, सारे इंडेक्स का सारे एरर्स का रेजोल्यूशन दिया हुआ है। ये तुम्हारा 500 एरर इंटरनल सर्वर एरर पे क्या क्या करना है सब वो तुम लोग कर लेना। मैं अभी खुद का क्यों खुद ट्रबल शूट करूँ। बट ये दिखाना था कि तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन इतना ही है और कुछ। और कुछ। और इंट्यून से जो है अभी क्या कॉन्फ़िगरेशन करना होगा हमें? इंट्यून से कॉन्फ़िगरेशन करना होगा तो तुमको पहले ये 2 सर्टिफिकेट लगेगा। ट्रस्टेड रूट सर्टिफिकेट से तुमको ये CA01 एक्सपोर्ट करना होगा। एक्सपोर्ट इट एज कुछ भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता। ये तुम्हारा रूट CA पब्लिक सेट है। ब्राउज करो किधर सेव करना चाहते हो। और तुमको सबऑर्डिनेट सीए भी चाहिए होगा। CA2 का भी चाहिए। ये दोनों एक्सपोर्ट करने के बाद दिस इज योर इशूइंग CA पब्लिक सर्ट। ठीक है, ये दोनों तुमने एक्सपोर्ट किए। अभी इस दोनों से तुमको इंट्यून किधर है। ये इंट्यून है, ये तो इंट्रा है। वो दोनों सर्टिफिकेट लेके तुमको 2 ट्रस्टेड सर्टिफिकेट प्रोफाइल्स बनाना होगा।
ये वाला, ये जो ट्रस्टेड सर्टिफिकेट प्रोफाइल है, ये सर्टिफिकेट प्रोफाइल तुमको दो बनाना होगा, एक रूट सीए के लिए, एक इशूइंग सीए के लिए। तुमको डिप्लॉयमेंट जो है वो ग्रुप सेम होगा, ग्रुप चेंज करके नहीं कर पाओगे, ठीक है। और फिर तुम लोग बनाओगे स्केप सर्टिफिकेट प्रोफाइल, भी सही है, टेम्पलेट के अंदर से स्केप भी वैलिड नाम दो, एंड देन टू कॉन्फ़िगर। तुमको अगर सर्टिफिकेट डिलीवर यूजर को करना है तो यूजर, अगर डिवाइस पे करना है तो डिवाइस, तो बेस्ड ऑन दिस वो सर्टिफिकेट certlm.msc या फिर usert.msc पे जाएगा। अच्छा, तुम यूजर यूज कर रहे हो तो सब्जेक्ट नेम फॉर्मेट में जो भी है तुम यूजर आइडेंटिटी स्पेसिफिक यूज कर सकते हो, जैसे CN इक्वल्स टू यूजर नेम या फिर ईमेल एड्रेस या UPN। अगर तुम इधर पे डिवाइस चूज करते हो देन यू कैन नॉट यूज यूजर एट्रीब्यूट्स। डिवाइस का यूजर नेम डिवाइस का UPN नहीं होता, डिवाइस का AD, डिवाइस ID या फिर डिवाइस का सीरियल नंबर वो सब होता है। वो तुमको फॉर्मेट इधर पे चूज करना है। फॉर्मेट तुम्हारा जो भी यूज तुम करोगे वो तुम्हारा इधर पे मेंशन्ड है। ये जो user certificate can contain both user and device attributes. Device certificate can only contain device attributes. और तुमको फॉर्मेटिंग जो है वो तुमको इधर पे मेंशन रहता है। हाँ, ये तुम्हारा सारे यूजर के एट्रीब्यूट्स हैं, और जैसे ये डिवाइस आईडी, सीरियल नंबर, IMEI नंबर, ये सब तुम्हारा डिवाइस का एट्रीब्यूट्स है। तो इससे तो समझ लो, अगर मैं CN पे यही उठाता हूँ तो मेरा स्केप प्रोफाइल समझ लो मैं यूज़र दे रहा हूँ, और मेरा कॉमन नेम इज दिस, एंड सब्जेक्ट अल्टरनेट नेम पे मैं कुछ भी चूज कर सकते, ईमेल एड्रेस, यूजर प्रिंसिपल नेम या DNS या जो भी वैल्यू है, देन वैल्यू सही दे दिया। ना सर्टिफिकेट वैलिडिटी पीरियड, मतलब ये सर्टिफिकेट जो जनरेट होगा उसका वैलिडिटी कितना होगा, 1 साल का, 2 साल का, कि जो भी तुम चाहो। की स्टोरेज प्रोवाइडर मतलब ये सर्टिफिकेट जो स्टोर डिवाइस पे होगा वो अपना प्राइवेट की किधर स्टोर करेगा। तुम TPM कर सकते हो, नहीं तो सॉफ्टवेयर कर सकते हो, नहीं तो हेलो फॉर बिजनेस पे भी कर सकते हो, जो तुम्हारा मर्जी है। नॉर्मली हम ये सिलेक्ट करते हैं कि एनरोल टू TPM इफ प्रेजेंट, अदरवाइज सॉफ्टवेयर। की यूजेज मैंने बोला था उस दिन, तो कल ही बोला था, इधर पे जो तुम कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करते हो उस रजिस्ट्री की पे एंडस पे हिट हो रहा है। तो तुम अगर चाहते हो कि ये पर्टिकुलर स्केप प्रोफाइल जो तुम कर रहे हो ये वो पर्टिकुलर टेम्पलेट से सर्टिफिकेट लाए, तो तुमको उस अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशन बनाना होगा। जैसे कि मैंने इधर पे कुछ नहीं किया था तो मेरे लिए कोई डिफरेंस नहीं है, तो मैं दोनों ही कर सकता हूँ या फिर एक भी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीनों पे मेरा सेम टेम्पलेट कॉन्फ़िगर है। की साइज फिर से तुम्हारा सिक्योरिटी से आएगा। ऑब्वियसली तुमने उधर पे टेम्पलेट जो सिलेक्ट किया था उस टेम्पलेट से मैच करना चाहिए। तुमने उधर पे टेम्पलेट अगर 4096 का बनाया और इधर पे 2048 तुम सिलेक्ट करते हो तो तुम्हारा प्रोफाइल फेल होगा। टेम्पलेट पे जो साइज तुमने तुमने क्रिएट किया था उसी का होगा।
एंड सेम फॉर हैश एल्गोरिथम भी। तुमने SHA-1 या SHA-2 सिलेक्ट किया था, अकॉर्डिंग तुमको होगा। नाउ यहाँ पे रूट सर्टिफिकेट सिलेक्ट करने को बोलता है, तो ये तुम अगर क्लिक करोगे तो ये तुमको जो तुमने वो जो दो ट्रस्टेड सर्टिफिकेट जो पहले बनाया वो पब्लिक सर्टिफिकेट लेके वो दोनों सर्टिफिकेट तुमको दिखाएगा। बट यहाँ पे नाम तुमको रूट सर्टिफिकेट बोल रहा है, तो तुम कौन से सर्टिफिकेट को चूज करोगे? CA01 यही पे घपला है। इशूइंग सर्टिफिकेट को। CA0, हाँ, Subordinate. इशूइंग CA इज योर रूट CA। ओके ओके इंट्यून को PKI के बारे में पता नहीं कि तुम्हारे इशूइंग CA के ऊपर और कितना CA है। इंट्यून के लिए दैट इज द रूट CA। तो तुम वो वाला सर्टिफिकेट इधर पे चूज करोगे। इधर पे तुम अगर देखते भी हो तो वो बोलता है कि the CA certificate must match the root certificate of the CA that is issuing the certificate। Okay. ठीक है, तो मतलब डिस्क्रिप्शन एक्चुअली गलत है, ये नाम कुछ और होना चाहिए था, बट दैट इज हाउ इट इज। और एक्सटेंडेड की यूजेज तुम कुछ भी यूज कर सकते हो, नॉर्मली हम इसको एनी पर्पस यूज करते हैं। Okay. और रिन्यूअल थ्रेशोल्ड भी तुम डिफॉल्ट 20 पे ही रहता है, तो इसका मतलब ये है कि 1 साल का वैलिडिटी है। तो 1 साल का 20% जब टाइम आ जाएगा, मतलब 80% टाइम खत्म हो जाएगा, तब से ये प्रोफाइल ऑन द डिवाइस रिट्राई अटेम्प्ट करना स्टार्ट करेगा सर्टिफिकेट को रिन्यू करने के लिए। और एट द एंड यू हैव टू गिव योर स्केप सर्वर URL, जो कि है तुम्हारा वो एक्सटर्नल URL किधर गया? ये जो तुम्हारा एक्सटर्नल URL है, सी अभी 403 भी आ गया। escape is working perfect। फिर पे वो एक्सटर्नल URL मैं दूंगा, पेस्ट करूंगा एंड इसको प्रोफाइल को क्रिएट करके सेव करूंगा। डिप्लॉयमेंट किस ग्रुप पे होगा? इसको तुमने ट्रस्टेड सर्टिफिकेट जिस ग्रुप पे डिप्लॉय हाँ किया था सेम पे, हाँ सेम पे। उसी ग्रुप पे तुमको ये सर्टिफिकेट प्रोफाइल डिप्लॉय करना है। बेसिकली फंडा यही है तुम्हारा, ये इधर पे जो सर्टिफिकेट तुम चूज कर रहे हो वो सर्टिफिकेट का और ये सर्टिफिकेट का असाइनमेंट सेम होना चाहिए। That's true. तो तुमको असाइनमेंट इसमें प्लानिंग से करना होगा, क्योंकि तुमने ट्रस्टेड सर्टिफिकेट अगर डिवाइस ग्रुप पे डिप्लॉय किया और तुम यहाँ पे यूजर सर्टिफिकेट टाइप डिप्लॉय कर रहे हो, तो तुम इसको डिवाइस ग्रुप पे डिप्लॉय नहीं कर सकते हो, तो यूजर ग्रुप पे डिप्लॉय करना होगा। तो फिर मतलब तुम्हारा ट्रस्टेड सर्टिफिकेट भी यूजर ग्रुप पे जाना चाहिए, नॉट डिवाइस ग्रुप। ये प्लानिंग करके तुमको ये करना होता है। बहुत लोग यही प्लानिंग नहीं करते हैं, इसी पे चूक जाते हैं और इसी के लिए स्केप प्रोफाइल में एरर खाते हैं। तुमको चेक करना होगा कि तुम्हारा पहले सर्टिफिकेट टाइप क्या है, उस हिसाब से तुम डिप्लॉयमेंट करोगे। अगर यूजर है तो यूजर ग्रुप पे, डिवाइस है तो डिवाइस ग्रुप पे। बट जिस भी ग्रुप पे तुम इसको डिप्लॉय कर रहे हो उसी ग्रुप पे तुम्हारा ये इधर पे ट्रस्टेड सर्टिफिकेट भी डिप्लॉयड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने ट्रस्टेड सर्टिफिकेट डिवाइस ग्रुप पे डाला और स्केप सर्टिफिकेट यूजर ग्रुप पे डाला मेरा प्रोफाइल चल जाएगा, नहीं चलेगा। ठीक है, बस इतना ही, और है नहीं स्केप पे। हाँ, इधर पे तुम मल्टीपल, अगर तुम्हारे पास जैसे अभी मैम ने एक एंडेस सर्टिफिकेट किया
मतलब एक एंडेस सर्वर किया, अगर मेरे पास दूसरा एंडेस सर्वर होता तो मैं इधर पे मुझे और एक एक्सटर्नल यूआरएल मिलता, करेक्ट। तो मैं वो भी इधर ऐड कर सकता था। बट प्रॉब्लम ये है कि इंट्यून जब ये सर्टिफिकेट डिप्लॉय करेगा, इंट्यून देखेगा इस सर्टिफिकेट में 2 यूआरएल है, तो वो डिवाइस को किसी एक यूआरएल देगा। बट ये पूरा स्केप का जो ट्रांजैक्शन होता है, इसमें डिवाइस इंट्यून से 3 बार यूआरएल पूछता है। तो इंट्यून 3 बार सेम ही यूआरएल डिवाइस को प्रोवाइड करे, अगर हम मल्टीपल यूआरएल्स इधर पे प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो गारंटी हम नहीं ले सकते। वो गारंटी माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं ले सकता कि तीनों बार डिवाइस को सेम यूआरएल मिलेगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि डू नॉट add not recommended to add more than one external URL in your escape profile. Now अभी तुम्हारे पास अगर 2 एंडेस सर्वर है, तुमने करके रखा है कि एक मेरा डाउन होगा तो मैं दूसरे को दूंगा, then what you will need to do is तुम्हारा इस प्रोफाइल में आके तुमको जो प्रोफाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है उसको ओपन करोगे, उसका जो एक्सटर्नल यूआरएल है मतलब जो अभी डाउन है वो यूआरएल हटाओगे, डिलीट करोगे, और जो इंडेक्स सर्वर तुम्हारा काम कर रहा है उसका यूआरएल डालोगे, प्रोफाइल को सेव करोगे। दैट्स ऑल। मतलब एक तरह से एक्टिव तो पैसिव। अभी एक्टिव पैसिव तो नहीं हो रहा है इसमें, क्योंकि मैनुअल मैनुअल मतलब, स्विच कर रहे हो ना। हाँ मैनुअल स्विच कर रहा है ना हम लोग हाँ, को। और दोनों दोनों सर्वर ही चल रहा है इधर पे, वो एक्टिव एक्टिव या एक्टिव पैसिव फेल ओवर ऐसे ऑटोमेटिक स्विच फेल ओवर नहीं होगा, लेकिन मैनुअल तुमको कर करना सकता है। होगा। हाँ, ठीक है। यही है स्केप लेकिन का ये रेकमेंड कर इंफ्रास्ट्रक्चर। सकते हैं जो है हम मतलब कस्टमर को कि आप एक स्टैंड बाय एंडेस खड़ा कर सकते हो इन जरूरत नहीं केस। होता है, अच्छा। जरूरत नहीं होता है। हम लोग का एटॉस का 1,10,000 विंडोज डिवाइस मैनेज हो रहा है एक ही एंडेस सर्वर पर। ठीक है? और यही जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पीकेसीएस के लिए भी सेम है, उसमें सिर्फ तुमको ये एंडेस रोल और ये सब कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं। मतलब इस सर्वर में जो हम लोग ने एंडेस रोल और आईआईएस वो सब जो कॉन्फ़िगरेशन किया था, वो सब कुछ तुमको नहीं करना पड़ेगा। जस्ट इंट्यून का सर्टिफिकेट कनेक्टेड इंस्टॉल करो, पीकेसीएस को टिक मारो और हम्म। काम करो। तो डिफरेंस क्या है जो है स्केप के और पीकेसीएस में नॉर्मली? केप में मतलब तुम प्राइवेट की तुम्हारा कभी एक्सपोर्ट नहीं होगा। पीकेसीएस में तुम्हारा प्राइवेट की क्लाउड पे रहेगा। और डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस तुम्हारा यही सिंप्लिसिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के इजी पे ही है। बट मोस्टली प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में किसी भी कंपनी में तुम पीकेसीएस डिप्लॉयमेंट नहीं देखोगे। अगर सर्टिफिकेट ऑथेंटिकेशन यूज हो रहा है तो सारे ऑर्गेनाइजेशंस में स्केप ही चलता है। हाँ, एसमाइम के लिए पीएफएक्स यूज कर रहा है वो अलग बात है, बट नॉर्मल पीकेसीएस का कोई इम्प्लीमेंटेशन है। एसमाई में देखो बस अभी हमारा इसका, काम सिर्फ पीएफएक्स इंपोर्ट मतलब पीएफएक्स जैसे ये हाँ स्केप के लिए किया है वैसे ही पीएफएक्स वहां करके प्रोफाइल बस, और कुछ नहीं करना है वहां पे हमें। नहीं, हम लोग का कोई नहीं है उसमें। अच्छा। बट इसमें हाँ ये है चीज कि आज देखो एक 50,000 एम्प्लॉय स्ट्रेंथ का कंपनी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सेट कर रहा है और एक 500 स्ट्रेंथ का कंपनी तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेट कर रहा है, दोनों के इंफ्रास्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा, राइट? हम्म। दोनों के इन्वेस्टमेंट पावर में भी डिफरेंस होगा। तो समझ लो एटॉस के पास, आज एटॉस का अगर बोलूँ मैं मुझे एक और सर्वर चाहिए, तो
कोई कुछ सोचेगा नहीं, मैं जिसके पास अप्रूवल मांगूंगा वो मुझे अप्रूवल दे देगा वो रन करने के लिए, क्योंकि बजट का कांस्टेंट है नहीं। बट एक छोटा कंपनी को अगर तुम बोलो कि मुझे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मतलब 3 सर्वर तो तुमको इधर लग ही रहा है, डीसी, सीए और एनडेस सर्वर। तो उसमें क्या होता है कि वो लोग थोड़ा सोचते हैं कि मेरा कंपनी फ्यूचर में इतना भी ग्रो करेगा कि नहीं, मेरा ये जो अभी का इन्वेस्टमेंट है इसमें मतलब क्या मतलब है इतना अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट करना। तो इन सारे केसेस में जब आता है, देन पीकेसीएस इज द बेस्ट चॉइस। या फिर तुम अभी अगर तुम ये तो हम लोग ऑन प्रेमिसेस किए हैं। देयर आर तुम्हारा सर्विसेज जो तुम्हारा ये स्केप सर्टिफिकेट और ये पीकेसी सर्टिफिकेट एज अ सर्विस भी प्रोवाइड करता है और इंट्यून मैनेजमेंट, तो वो भी सर्विस यूज कर सकते हो। ठीक है, और पीकेसीएस में भी चलो। सेम इतने सर्वर्स लगेंगे? पीकेसीएस में सर्वर इतना नहीं लगता है तुमको। एंडेस जैसे इधर पे एक डेडिकेटेड सर्वर है, हम्म। ठीक है। पीकेसीएस में मुझे डेडिकेटेड सर्वर नहीं चाहिए। जैसे कि अगर मेरे पास कोई फाइल सर्वर है तो मैं उस पे भी वो सर्टिफिकेट कनेक्टर इंस्टॉल करके उसमें भी पीकेसीएस कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। आई विल नॉट नीड एंडेस के लिए, जैसे मुझे एक अलग ही सर्वर चाहिए जिसमें मुझे सीए रोल इंस्टॉल करके फिर एंडेस कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। मुझे ऐसा कोई डेडिकेटेड सर्वर पीकेसीएस के लिए नहीं चाहिए। मेरे पास कोई भी जैसे प्रॉक्सी सर्वर है या फिर कुछ भी सर्वर है जो मेरा फुल यूटिलाइजेशन पे नहीं चल रहा है, तो मैं उस सर्वर पे एक और एक्स्ट्रा मतलब रोल अगर कॉन्फ़िगर करूंगा तो उससे मेरा पीकेसीएस चल जाएगा। पे सर्वर पे लोड भी कुछ नहीं आएगा क्योंकि काम तो वो एजेंट कर रहे हैं इनटून को आउटबाउंड कनेक्शन पे। मेरा लोकल सर्वर पे तो कोई प्रोसेसिंग लोड नहीं जा रहा। ठीक है, हम्म। इसके वो लॉग्स भी होते हैं जो हम देख सकते हैं एंडेस पे? पहले लॉग्स होता था, अभी नहीं होता है। क्या? पहले तुम्हारा आईआईएस लॉग होता था एक्स्ट्रा, फिर तुम्हारा सीआरपी लॉग्स होता था, सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन पॉइंट लॉग्स, और फिर तुम्हारा ये जो कनेक्टर का एंडेस प्लगइन मॉड्यूल है उसका भी लॉग्स होता था। ये मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारा 2021-2022 का। फिर तुम्हारा ये जो सर्टिफिकेट कनेक्टर माइक्रोसॉफ्ट ने चेंज किया, जो तुम इस लोगों ने पूरा यूनिफाइड कर दिया कि सारे फंक्शनैलिटीज एक ही कनेक्टर पे, पहले तो अलग अलग कनेक्टर आता था ना। हम्म। ये जब से ये यूनिफाई किया है तब से ये लोग ने क्या किया कि प्रोसेसिंग सर्वर पे डाला ही नहीं। मतलब सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट जैसे ही एंडेस को रिसीव हुआ, कनेक्टर उस रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करेगा और उसको इंट्यून पे भेज देगा प्रोसेसिंग करने के लिए। इंट्यून अभी अगर कनेक्टर को बोलेगा कि हाँ दिस रिक्वेस्ट इज वैलिड, देन वो फिर अपना काम आगे बढ़ाएगा जो सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट करके लाएगा। लेकिन ये प्रोसेसिंग पहले ऑन द सर्वर ही होता था, वो एंडेस प्लगइन मॉड्यूल करता था। बट अभी वो प्लगइन मॉड्यूल का कोई एग्जिस्टेंस है नहीं, इसीलिए कोई लॉग बनता नहीं। अभी तुमको कुछ भी एरर है, तुमको ब्लाइंडली अपना ये एक्सटर्नल यूआरएल का ही जो आउटपुट है इसी पे फॉलो करना है। ये 403 दे रहा है मतलब तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन सही है, सर्टिफिकेट डिवाइस पे जाना चाहिए और जाएगा। अगर इधर पे तुमको 403 नहीं आ रहा है, कुछ और एरर आ रहा है, देन तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन एरर है। और अगर तुम्हारा
मतलब कॉन्फ़िगरेशन एरर नहीं है और तुमको इधर 403 आ रहा है और तुम्हारा सर्टिफिकेट प्रोफाइल्स पे तुम फेलियर देख रहे हो, सर्टिफिकेट नहीं जा रहा है, देन माइक्रोसॉफ्ट के सर्विस इशू है। टिकट रेज करोगे, वो लोग ही अपना बैकएंड से लॉग पुल करके वो लोग चेक करेंगे, क्योंकि अभी लॉग्स हमारे पास है ही नहीं, तो हम कैसे चेक करेंगे। ओके, मतलब कोई और डिटेल ट्रबल शूटिंग हम नहीं कर सकते सिवाय इसके यूआरएल के अलावा? हाँ नहीं, अभी और नहीं, पहले पॉसिबल होता था। ओके, चलो तो इतना ही, तुम लोग का पूरा टॉपिक खत्म। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, एंजॉय दिवाली। एक रिकॉर्डिंग मैं बंद जो कर है रहा हूँ। एक सेशन Q&A का रख सकते हैं किसी दिन।